Hello friends, I am back again with a new topic. This topic is again with respect to management, and this is again a very important topic जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा important है. So the topic which I'll be covering today is the SM model. So it is also called the strategic management model. So this model is basically a process of strategic management which focuses on developing the strategy for a company. अगर कोई भी organization they are new to the industry, there are certain steps they have to follow in order to attain an objective which they have kept prior. This model also helps to set up realistic goals. By this term I would want to say कि अगर किसी कंपनी ने सपोज अ फर्म दे हैव जस्ट सेट अप इन एन इंडस्ट्री, और अगर मान लो छोटा सा फर्म है बट उनका जो उन्होंने गोल रख दिया है कि विद इन नेक्स्ट 1 ईयर दे हैव टू ओवरटेक रिलायंस, so this is not realistic, मतलब it is not possible at all. So that's why this model helps to set up a realistic goals. तो ऐसे मॉडल में बेसिकली देर आर फोर this basically consists of four steps. The very first step is environmental scanning. The second step is strategy formulation. Third step is implementation of the strategy, and the fourth step is evaluation and control. I'll be talking about these four steps in the further slides. So talking about the very first step, it is environmental scanning. So environmental scanning is basically monitoring, evaluating and disseminating of information as in once you have monitored your environment, you have evaluated every risk and the opportunity, आपको वो जाके you have to go and share those detail with the key people of the organization जो कि डिसीजन लेंगे, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, सीईओ हो गया. सो स्वॉट एनालिसिस इज यूज्ड. स्वॉट एनालिसिस इज बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. तो जब हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ स्कैन. वन इज फॉर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड अदर इज फॉर द इंटरनल एनवायरनमेंट. सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इट कंसिस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. जो भी बाहर मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके थ्रेट्स एज इन आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, दैट आर that are external environment. And internal environment are those which are within the organization, that is your strength, your weakness, where you hold a very strong grip, what is the weakness of your organization. So इसके लिए these four steps basically is done in order to scan the environment. Now next, the second step is strategy formulation. So once you are done with scanning the environment, you need to prepare a long term plan. So strategic formulation basically it helps the organization to formulate long term plans that would assist the organization in carrying activities. तो एक बार if you have the long term plans and you are well aware of the core competencies of the organization, ये जो core competencies है that will be taken out with the help of SWOT analysis. उसके बाद आप you involve and you develop corporate vision. तो basically strategy formulation के लिए there are 4 to 5 steps which the organization has to follow. The very first step is the vision of the organization. Vision of the organization is where the organization wants to see themselves after a certain period of time. जैसे एक कंपनी ने आज अपने आप को सेटअप किया है, after a period of time, let's suppose after 1 year they want to diversify their operations. So that is the vision of the company. Now the mission of the company is what is the purpose of the company to exist. मतलब वो उसने अपने आप को सेटअप क्या किया था, what they want to produce, what will be their product. Now next is objective. So organizational plans are usually long term and they क्राफ्ट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो ना अपना ऐसा नहीं होता कि एक महीने के अंदर उनको ये करना, उनका ऑब्जेक्टिव ना लॉन्ग टर्म होता है, बिकॉज एक महीने में यू वोंट बी एबल टू अटेन एनीथिंग और यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप कैसा कर रहे हैं. सो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर लॉन्ग टर्म्स. नेक्स्ट इज द स्ट्रैटेजी. अगर strategy matlab if an organization has a detailed plan, it will help the organization in realizing the mission and the ऑब्जेक्टिव. सो जो भी स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे दैट विल हेल्प इन ऑर्डर टू गेन दैट ऑब्जेक्टिव. जो भी आपने ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है, अगर आपको स्ट्रैटेजी इस टाइप से बनाना है कि आप वो ऑब्जेक्टिव को अटेन कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज द पॉलिसी. सो जो पॉलिसी है, पॉलिसीज दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर यूज फॉर मेकिंग डिसीजन. एक कंपनी में कोई देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ रूल जो एम्प्लॉयज को फॉलो करने हैं इन ऑर्डर टू
implement that strategy. मतलब कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है. So there are certain policies which governs the action of the employees. तो जो नेक्स्ट स्टेप है इन ऐसे मॉडल इज स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन. अगर एक लेट्स सपोज अ कंपनी दे हैव कम विद अ ब्रिलियंट प्लान, दे हैव कम विद अ ब्रिलियंट आइडिया, बट दे आर नॉट एबल टू दे आर नॉट एबल टू implement that strategy effectively. So not able to implement the strategy effectively is as good as not having any strategy. तो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है, इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप उस स्ट्रैटेजी को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज एंड इन डूइंग सो, अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए द कंपनी नीड्स टू हैव अ प्रोग्राम, बजट एंड प्रोसीजर. तो प्रोग्राम इज समथिंग लाइक प्रोग्राम इज the step which the company has to follow in order to implement those strategy. Budget, I know you would be knowing कि कैसे पैसे कहाँ पे, कितने मशीनरी पे कितने पैसे लगाने हैं, लेबर पे कितने पैसे लगाने हैं, आपके रॉ मटेरियल्स पे कितने पैसे लगाने हैं, वो कंपनी को एडवांस में ही पूरा बना के रखना है, ताकि स्ट्रैटेजी में इम्प्लीमेंट करते टाइम उनको ऐसा ना पड़े कि अरे लेबर में शॉर्ट पड़ गया पैसा, अरे मशीन में शॉर्ट पड़ गया. तो दे हैव टू कीप इन माइंड कि पहले से ही बजट पूरा एलोकेटेड है. नेक्स्ट प्रोसीजर. प्रोसीजर इज किस एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आ रहा है स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट के लिए. ऐसा नहीं कि आपने पहला स्टेप रखा सीधा फाइनल स्टेप पे आ गए, बीच का प्रोसेस अब पूरा भूल गए. सो देयर हैज टू बी सर्टेन प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी. अब एक बार नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. आपकी स्ट्रैटेजी लग गई, आपने स्ट्रैटेजी प्लान कर लिया, एनवायरनमेंट स्कैन कर लिया, सब कर लिया, आपने इंप्लीमेंट कर दिया स्ट्रैटेजी. अब द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपको इवैल्यूएट करना कि वो स्ट्रैटेजी आपने जो यूज की है, इज इट एफिशिएंट. और आपको ये कैसे पता चलेगा, यू हैव टू कीप ऑन इवैल्यूएटिंग योर प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी. जो आपके कंपनी का एक्चुअल प्रोग्रेस है और जो आपने एक्सपेक्ट किया था, आर दे मैचिंग, लाइक इफ नॉट हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन दैट. अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है, देन यू हैव टू रीवर्क अगेन कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ पे गलत कर दी आपने. दैट बेसिकली कम्स इनटू इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल. तो द परफॉर्मेंस ऑफ द आउटपुट शुड बी चेक रेगुलरली. मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक ही बार इवैल्यूएट किया है, आपको टाइम एंड अगेन बार बार उसको इवैल्यूएट करते रहना चाहिए कि कहाँ पे कभी जाके परफॉर्मेंस में फिर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो यू हैव टू वर्क अगेन ऑन दैट. और जो भी प्रॉब्लम है उस पर यू हैव टू टेक एक्शन, ताकि वो आप प्रॉब्लम को ठीक कर सके. नेक्स्ट कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट. सबसे पहला तो इट हेल्प्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव. जैसे मैंने आपको बताया कि द ऐसे मॉडल इट हेल्प्स अ कंपनी टू सेटअप ऑब्जेक्टिव जो उसको अचीव करना है इन फ्यूचर टर्म्स. नेक्स्ट है आपकी कंपनी का प्रोग्रेस, कि कंपनी आपकी कहीं स्टैग्नेंट तो नहीं हो गई है, कि लाइक द प्रोग्रेस वॉट एवर द कंपनी इज मेकिंग, द प्रॉफिट्स वॉट एवर द कंपनी इज गेटिंग, ये आपको मेजर करने में हेल्प करता है. द नेक्स्ट इज इट इम्प्रूव्स द स्टेबिलिटी. ऑब्वियसली अगर आपकी कंपनी, इफ द कंपनी इज डूइंग गुड एंड इफ यू आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी, दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव योर स्टेबिलिटी. This, the very important thing which SM model helps is it identifies SWOT. So SWOT is something which not only the company, even in personal life everyone has to follow. कि the company has to know, the individual has to know their strength, their weakness, the opportunity, the threat. अगर कंपनी को अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम है, तो देन दे कैन वर्क ऑन इट. अपने वीकनेस पे वर्क कर सकते हैं, वो उसको और स्ट्रांग बना सकते हैं. स्ट्रेंथ पे दे कैन इम्प्रोवाइज, दे कैन डिफरेंशिएट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स. अपॉर्चुनिटी, इफ दे गेट टू नो कि अभी हाँ ये दिस इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू द मार्केट, दैट इज द अपॉर्चुनिटी फॉर देम. तो वो उस टाइम पे दे कैन गो इन द मार्केट एंड दे कैन एक्सेल. थ्रेट, अगेन उनको पता रहना चाहिए, लाइक दे शुड हैव अ नॉलेज कि उनका कॉम्पिटिटर क्या ऐसा कर रहा है जो उनके, जो वो नहीं कर पा, जो द कंपनी इज नॉट एबल टू डू, कि कस्टमर उनके पास क्यों जा रहे हैं, व्हाट आर द थ्रेट्स. नाउ कम्स द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. पहला तो दिस इज टाइम कंज्यूमिंग. अब बहुत सारे स्टेप्स हैं कि आपको इम्प्लीमेंट करना है. आपको पहले इन्वायरमेंट को आपको स्कैन करना है, फिर स्ट्रैटेजी बनाना है, फिर आपको इवैल्यूएट करना है. अगर आपको इवैल्यूएशन में कोई गलती आ गई, आपको फिर वापस स्टार्ट करना है. सो दिस इज बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग. नेक्स्ट इज दिस ओनली डील्स विथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, कि आपको फ्यूचर में क्या करना है. दिस डज नॉट टेल अबाउट द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, कि आपको एक महीने के अंदर क्या करना है, 2 महीने में, 1 साल में क्या करना है. दिस ओनली टॉक्स अबाउट द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. द नेक्स्ट is the outcome which will be coming, the company has no idea about it right now. उनको बस they just have made the plan, उनको नहीं पता है कि the strategy whatever they have implemented will it be fruitful or not. So the outcome is unexpected. Next is adaptability is poor. हर कंपनी नहीं अडेप्ट कर पाती है.
दे फेल। बहुत कंपनी क्या होती है कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजी। बहुत कंपनी क्या करती है कि दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उनको इन्वायरमेंट को स्कैन करने में प्रॉब्लम होता है। सो अडेप्टेबिलिटी इज a problem. So friends, this will be all about the video, and in case you have any doubt about the video, you can just drop the question in the comment box. I'll be taking down the questions. And thank you so much for watching the video. If you like the video, kindly give me a thumbs up and subscribe the channel. I'll be coming up with these kind of videos in future as well. Thank you.